Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਛੂਓ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ. ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ. जी ठीक है। बाप बड़े लोग उसके नाम से हम शुक्र इतना ज्यादा मौका दिया है, मौके में हाजिर होने के बाद काम करने लगे हैं, आपकी प्रतिष्ठा करने लगे हैं, उस वक्त हम दिल खुदा करते हैं. हम सबका आप इस पूरे मंडे घर में खत्म देते हैं कि जितना किताब दुरुस्ती बाप हम सब खास हम जो बागला पढ़े हमारे बात बरकत हो, कोशिश करें आपको पसंद है, निदवाल रह करें आपको सब प्रश्न का आप उनका जवाब मिले, हम सबका हाथ आप मेरे सुनने कबूल की इसमें नस्री के नाम है. आमीन. ਆਮੀਨ. ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰਾ. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ. ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੀਕ, ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਾ ਤੀਕ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹਰੂਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord. दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी. दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी. मैं कमजोर तू जोरा वाला प्यार, मैं कमजोर तू जोरा वाला प्यार, तेरे फजल दिए लोग ते यसु मैनू साम के रखी. दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी. बंद बहिश्ता वाला बूआ, बंद बहिश्ता वाला बूआ, दिता यसु ने अज को ते यसु मैनू साम के रखी. दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ. ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੀ. ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਇਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ. ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੋਈਆ ਸੈਡਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ. ओके. ज़बूर 40. प्रेज द लॉर्ड. ज़बूर 40 गाऊंगी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. ओ खतरे दे टोए
ਚੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟੋਏ ਤੇ ਖੋਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਚਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਚਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਦੀ। ਬਥੇਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਖੌਫ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ। ਬਥੇਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਖੌਫ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣੋ ਯਹੋਵਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਸ ਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣੋ ਯਹੋਵਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਸ ਦਾ। ਘਮੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰੀ। ਘਮੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਹੋ ਜ਼ਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। गॉड ब्लेस यू। मेरा मन कायम है, हे परमेश्वर मेरा मन कायम है। मैं गावांगा, मैं भजन कीर्तन करांगा। हे मेरी महिमा जाग, हे सितार ते बरबत जागो। मैं फजर ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। हे प्रभु मैं ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ। प्रेज द लॉर्ड। ਜ਼ਬੂਰ 38। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਏ ਖੁਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਏ ਖੁਦਾ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ।
ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਦੇਵੀਂ ਨਾ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਰੱਬਾ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਰੱਬਾ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम है रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, हड्डियां बेआराम है रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, मेरे सिर तो लंगे मेरे सब गुनाह, मेरे सिर तो लंगे मेरे सब गुनाह, एडे भारे होए रब्बा चुके जांदे ना, एडे भारे होए रब्बा चुके जांदे ना, मेरे जख्म होए बदबूदार कमाल, मेरे जख्म होए बदबूदार कमाल, सड़े बिल्कुल मेरी रब्बा बेअकली दे नाल, सड़े बिल्कुल मेरी रब्बा बेअकली दे नाल, कुब्बा हो मैं झुक गया रोंदा सुबह शाम, कुब्बा हो मैं झुक गया रोंदा सुबह शाम, कंड है सड़दी रहंदी रब्बा तन विच ना आराम, कंड है सड़दी रहंदी रब्बा तन विच ना आराम, मैं बेताब हो गया पीटा जांदा हां, मैं बेताब हो गया पीटा जांदा हां, दिल है रोंदा रहंदा रब्बा मैं चलांदा हां, दिल है रोंदा रहंदा रब्बा मैं चलांदा हां, या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, मेरा आहे मारना रब्बा तेथों नहीं दूर, मेरा आहे मारना रब्बा तेथों नहीं दूर, गुस्से नाल न झिड़की मैनू आए खुदा, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सजा। आमीन। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ। ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਭੇਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰਾਂਗਾ? ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू अंजना। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का मसा आपके पर ठहरा रहे। खुदावंद का देना हाथ, कुदरत वाला, ताकत वाला हाथ आपके ऊपर बड़ा रहे, शफकत वाला हाथ। खुदावंद आपको बाइस से बरकत बनाए इस ग्रुप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बहुत सी रूहें खुदावंद आपके जरिए बचाए और आपकी स्टडी में मदद करे। खुदावंद आपकी फैमिली के साथ हो और खुदावंद अपने वादे को पूरा करे कि तू निजात पा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। आपकी पूरी फैमिली खुदावंद यीशु मसीह को दिल से कबूल करे अपने मुक्तिदाता। गॉड ब्लेस यू। हम प्रस्तिश के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद की हुजूरी में जो भी हदिये नजरानी खुदावंद के बेटे बेटियों ने, बच्चों ने चढ़ाए हैं, हमारा ईमान है कि खुदावंद ने वो कबूल किए हैं, क्योंकि खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा ईमान है आपने भी खुदावंद की एक जो गहरी हजूरी है, थिक अनॉइंटिंग है, उसको महसूस किया है। और मैंने भी खुदावंद की आज गहरी हजूरी को महसूस किया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यस लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, आज के दिन तक खुदावंद तूने हमें संभाल के रखा और खुदावंद तूने हम पे रहम किया कि हम फिर से तेरी हजूरी में तेरे तख्त के सामने आए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, कि खुदावंद हम किसी भी तरह से अपने जोर से, अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद ये तेरा हमारे ऊपर रहम है, ये तेरा तरस है कि खुदावंद तू हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा करते है, हमारी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करता है। जो रुकावटें शैतान हमारे इस इकट्ठा होने के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए खड़ी कर देता है, खुदावंद तू उन सब पे गलबा हमें दिलवा के खुदावंद तू यहाँ हमें लेके आता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं ताकि तेरी मुंह की बातों को सुन सके खुदावंद, और तेरे हुक्मों पर अमल करने के लिए वो जो तो रोज हमें नया मसा, नया जोर, नई कुव्वत देता है, खुदावंद वो हासिल करें। खुदावंद खुदा जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं तो खुदावंद खुदा तू हमारी रूहानी जिस्मानी नेमतों से तू हमें भर देता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। तू कभी भी अपने जो तालिब हैं उनको खाली हाथ नहीं जाने देता। खुदावंद तू हमें रोज 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 खुदावंद तू भर रहा है, हमारे प्याले को लबरेज कर रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद ये सिर्फ तेरे ही प्यार की वजह से, तेरे तर्स की वजह से है कि खुदावंद हम तुझ में जोर पकड़ रहे हैं। खुदावंद हम कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद पाकरू तू हमारी मदद कर रहा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें यस्सु की मानित बना रहा है। खुदावंद बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने ये मंसूबा बनाया, तेरा ये सारा प्लान था कि हम सब इकट्ठे हों और खुदावंद वो तेरे गहरे मकाशफात, वो भेद हमारे ऊपर खुले। खुदावंद वो तेरे दिल की बातें जो तू हमसे करना चाहता है, खुदावंद तू हम सब से एक एक से वो कर रहा है। वो तू चाहता है कि सब तेरी आमद के लिए खुदावंद यीशु तैयार हों, तेरी आमद के लिए सब अपने बदनों को पेश करें, ताकि खुदावंद हम उस शैतान से, उस मुसीबत से, उस बड़ी मुसीबत से बच जाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए। खुदावंद बाप ये खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद
अपने बदनों को, अपने घरों को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। जहाँ कहीं भी खुदावंद हमने तुझे दुख दिया, तुझे नाराज किया है खुदावंद, अपने बोलने से, देखने से, सोचने से, किसी भी तरह से खुदावंद हमने तेरे हुक्मों को तोड़ा है खुदावंद, हमें माफ कर दे खुदावंद। हम इकरार करते हैं, हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे। एक एक गुनाह को, एक एक गलती को, खुदाओं को यीशु खुदावंद यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। जो भी शैतान ने खुदावंद खुदा उसके करिंदों ने खुदावंद उसकी दुश्मन की फौजों ने जो भी हमारे खिलाफ लिखा है, पढ़ा है, जो चिल्ले चढ़ाए हैं खुदावंद, जो भी उसने तवीज धागा जादू टोना कुछ भी किया है, जो लानते की हैं हमारे ऊपर यस्सु के नाम से खुदावंद एक एक लफ्ज को, एक एक नुक्ते को यस्सु के नाम से मिटा देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। उसके सारे असर को खुदावंद हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर के ऊपर खुदावंद उसका कोई भी वार चलने ना पाए खुदावंद यस्सु के नाम से। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारी बीवियां, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप खुदाम यस्सु सबको तेरे लहू में कवर कर देती हूँ खुदाम। शैतान उन्हें हम सबको छूने ना पाए खुदाम, किसी भी तरह से खुदाम उसका कोई प्लान हमारी जिंदगियों में कामयाब ना होने पाए, कहीं पे भी खुदाम खुदा उसको हमारी जिंदगियों में आने के लिए सुराग ना मिले खुदाम। कोई भी ऐसा हम दरवाजा ना खोलें, कोई भी ऐसी खिड़की ना खोलें कि शैतान हमारी जिंदगियों में आए, हमारे घरों में आए। यस्सु के नाम से एक एक के घर के चौगिर्द खुदाम मैं तेरे अच्छी रथों का पहरा लगा देती हूँ खुदाम। एक एक के चौगिर्द खुदाम यस्सु तेरे जंगजू, तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जबरदस्त सुरमा फरिश्तों को खुदाम खुदा, तेरे हीलिंग वाले फरिश्तों को खुदाम, तेरे ब्रेक थ्रू फरिश्तों को खुदाम खुदा, तेरे तकवीर देने वाले फरिश्तों को यस्सु के नाम से मुकर्रर कर देती हूँ। तेरे मसाफत वाले फरिश्तों को खुदा यस्सु मुकर्रर कर देती हूँ। जहां जहां हम जाएं तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करें खुदा खुदा, हमारी तरफ से होके जंग करें। कोई भी जंग छोटी हो या बड़ी हो खुदा, हम यस्सु तेरे नाम से, तेरे जोर से जीतते जाएं खुदा, फतह पे फतह हासिल करते जाएं खुदा। यस्सु के नाम से खुदा शैतान का कोई वार हमारे ऊपर चलने ना पाए, उसके सारे जलते हुए तीरों को यस्सु के नाम से बुझा देती हूँ खुदा। जो हमारी तरफ वो चलाता है, हमें दुख देने की, दर्द देने की, बीमारियां लेके आता है, हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम लेके आता है खुदा खुदा, किसी भी तरह से खुदा वो हमें दुख देने की कोशिश करता है, यस्सु के नाम से उसके सारे मंसूबे फेल कर देती हूँ। खुदा तेरा फरिश्ता दुश्मन की फौजों को रगेदता जाए, दुश्मन की फौजें पानी की तरह बह जाए यस्सु के नाम से। उसका कोई हमारे ऊपर जोर चलने ना पाए खुदा खुदा, यस्सु के नाम से तेरा पूरा होल्ड मैं इस ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर मांगती हूँ खुदा। इब्लीस का कोई होल्ड ना रहे हमारे ऊपर, बल्कि खुदा तेरा कंट्रोल, तेरा पूरा होल्ड खुदा खुदा हर एरिया में खुदा यस्सु तेरा मांग लेती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। हम अपने आप को जितने इस ग्रुप में इस मीटिंग में मौजूद हैं, हम सब अपने बदनों को खुदा यस्सु तेरे आगे पेश करते हैं खुदा, तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदा। तू इन बदनों को ले और इस्तेमाल कर खुदावंद अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए खुदावंद। हमारे अंदर से, बाहर से खुदावंद यीशु तू नजर आए खुदावंद, खुद हमारे अंदर से खुदावंद खुदा वो तेरी मीठी बातें खुदावंद खुदा, तेरे कलाम की बातें हमारे मुंह से निकले खुदावंद खुदा। हम चिरागों की तरह रोशन हो जाए खुदा खुदा, हमें वो नमक का सा मजा आ जाए खुदा खुदा, हम वो शहद की सी मिठास हमारे अंदर आ जाए खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा। जब लोग देखें तो खुदा खुदा वो जाने कि हम तेरे हैं, और खुदा खुदा शैतान को आग लगती रहे खुदा, वो कुड़ता रहे, वो शर्मिंदा होता रहे हमारी एक बात, हर एक बात से, हर एक काम से खुदा खुदा वो शर्मिंदा होता रहे वो खुदा खुदा। वो यस्सु के नाम से उस जगह को छोड़ दे, हमारे घरों को, हमारी जॉब प्लेस पे, स्टडी में खुदा खुदा कहीं पे भी खुदा वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है खुदा यस्सु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ वो सारी हमारी जगहों को, हमारे घर को खुदा यस्सु के नाम से छोड़ दे, हमारे बदनों को छोड़ दे यस्सु के नाम से। इसलिए कि हम यस्सु के खून से धुले हुए हैं, हम यस्सु के खून में छुपे हुए हैं, हम यस्सु के बाजुओं में हैं, हम
हम उसके परों में छुपे हुए हैं, हमें शैतान छू नहीं सकता। यस्सु के नाम से खुदावंद एक-एक को खुदावंद यस्सु के नाम से कवर कर देती हूँ। हमारे साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सबको भी खुदावंद यस्सु तेरे खून में छुपा देती हैं। जहाँ-जहाँ भी हम स्टडी के लिए जाते हैं, उन जॉब प्लेसेस को खुदा जॉब प्लेसेस को खुदावंद यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। हमारे साथ जो भी काम करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं, जो रहने वाले हैं, हमारे इर्द-गिर्द के लोग, हमारे मोहल्लेदार सब जाने के खुदावंद यीशु हम तेरे लोग हैं। हमारे बदन के अंदर से खुदा वो रोशनी निकले खुदा हमारे चेहरे से वो जलाल तेरा ज़ाहिर हो, जिस तरह मूसा के ऊपर तेरा जलाल ज़ाहिर हुआ था और खुदावंद उसका चेहरा रोशन हो गया था। खुदावंद हमारे भी चेहरे उसी तरह से रोशन हो जाए। जहाँ-जहाँ हमारे पाँव का तलवा टिके खुदावंद वो जगह तू हमें दे देना खुदा। यीशु के नाम से दुश्मन को वो जगह छोड़नी पड़े खुदा। दुश्मन का कोई असर उस जगह पे रहे ना खुदा हमारे घरों में हमारे जॉब प्लेस में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में खुदा जहाँ-जहाँ भी हम हमारे बच्चे जाते हैं, यीशु के नाम से तेरे लहू में कवर कर देती हूँ खुदा। तू हमें ऊँचाइयों पे लेके जा, बुलंदियों पे लेके जा खुदा। तू हमें सरफराज कर, कामयाब कर, जहाँ भी हम जाएँ खुदा कामयाब हों। दूसरों से सर बुलंद करना खुदा, यीशु के नाम से, क्योंकि हम तेरी चुनी हुई कौम हैं। हम निराले लोग हैं खुदा हमारे ऊपर हमारे खुदा का मसा ठहरा हुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा इस मीटिंग को खुदा शुरू से लेके आखिर तक खुदा तेरे हाथों में दे देती हूँ। जब कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुदा यीशु तेरे मुंह की बातें खुदा हम सुनना चाहते हैं। खुदा तू मेरे होंठों को मसा कर, गले को मसा कर खुदा मेरे होंठों के ऊपर खुदा मेरी ज़ुबान के ऊपर वो जलता हुआ कोला रख, मेरे मुँह से जो कलाम निकले वो ताया हुआ कलाम हो खुदा यस्सु के नाम से, जिससे ज़िंदगियाँ तब्दील हों, जिससे खुदा हमारे रूह, बदन और जान में खुदा वो बंद-बंद और गुदे-गुदे को जुदा करके जो तेरा कलाम है गुज़र जाता है। जहाँ कहीं भी खुदा हमारे जिस्म के किसी अज़ा को उसने जकड़ा हुआ है, उसने कैद किया हुआ है बीमारी की सूरत में, ज़ या ज़हनी किसी परेशानी में है, डिप्रेशन में है, खुदा यीशु के नाम से जब तेरा कलाम बोला जाए, तो वो सारी बदरूहें डरती और काँपती हुई हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से निकल जाएँ, यीशु के नाम से खुदा। और तेरा रोब और तेरा दबदबा खुदावंद हमारे ऊपर, हमारे घरों पे, हमारी चीज़ों पे ठहरा रहे यीशु के नाम से खुदा जब हम इस रोटी और पानी को लेते हैं, इस ऑयल को लगाते हैं, तो खुदावंद यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू की कुदरत से, तेरे खुदा इस तोड़े हुए बदन की कुदरत से, ताकत से खुदा हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाज़त खत्म हो जाए खुदा यस्सु के नाम से। प्लीज़ का कोई शैतान का कोई असर हमारे बदनों के ऊपर ठहरने ना पाए खुदा यस्सु के नाम से। वो सारी अंदरूनी जो बीमारियाँ हैं कोई लीवर प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, खुदा दिल की प्रॉब्लम है, खुदा यूट्रस की प्रॉब्लम है, खुदा यस्सु के नाम से कहीं खून की खराबी की वजह से जो बीमारियां हमारे बदन में आ गई हैं, खुदा मैदे की खराबी की वजह से खुदा यस्सु के नाम से उन सारी बीमारियों को खुदा यस्सु के नाम से खुदा इस बदन के, हमारे बदनों के अंदर से निकल जाए खुदा यस्सु के नाम से उनका सारा असर कैंसल हो जाए खुदा यस्सु के नाम से। खुदा दर्दे हैं, खुदा जोड़ों की दर्दें हैं, यस्सु के नाम से जहाँ कहीं भी इब्लीस ने जकड़ा हुआ है खुदा हमारे बदन को, यस्सु के नाम से खुदा आज आजादी है, बहाली है, खुदा बंधन खुल जाए, खुदा जंजीरें टूट जाए, वो डोरियां खुल जाए आज यस्सु के नाम से खुदा हम जब इस मीटिंग से उठे तो खुदा हम पहले जैसे ना रहे, हमारे अंदर वो नया जोर, नई ताकत, नया मसा, खुदा खुशहाली, बहाली, आजादी हमारे बदनों के अंदर आ जाए, हमारे घरों के अंदर आ जाए, खुदा हवाओं में, फिजाओं में खुदा वो पाक रू अ, खुदा कहीं पे गंदगी की, नापाकी की रूहें हैं, यीशु के नाम से हमारे घरों के अंदर से निकल जाए और हमारी हवाएं, हमारी फिजा जो है वो पाक और साफ हो जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा इस दुआ को मैं बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आप ईमान से इस पानी को लें और
रोटी जिन्होंने रखी हुई है, जो नहीं रखते वो कोशिश करें कि याद से रख लिया करें, क्योंकि मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसा तरीका कह लें या कोई भी ऐसी बात जो हमें पाक और साफ करती है, उसको लेते जाएँ अपनी ज़िंदगी में, ताकि कहीं पे भी कहीं हमने शायद रोज़-रोज़ हमने दुआ नहीं की, यीशु के लहू को नहीं लगाया, है ना? या माफ़ी नहीं माँगी, तौबा नहीं की, तो ये एक मैं कहूँगी कि खुदावंद ने हमें फ़ज़ल दिया है कि हम इस तरह से भी अपने सारी गंदगी को, नापाकी को खुदावंद के लहू से पाक और साफ कर सके, है ना? ताकि कोई भी धब्बा, कोई दाग, कोई झुर्री हमारे ऊपर ना रहे, ना बदनों पे, ना हमारे घरों पे। तो कोशिश करें कि आप इसको रेगुलर करें। जिस दिन नहीं भी हम संडे को इबादत होती है, तो आप अपने तौर पे भी घर में जब आप दुआ करते हैं तो आप इसको यूज़ करें। रोटी और पानी को रखें, खुद दुआ करें और बाद में इसको ले सकते हैं, है ना? तो मेरा ईमान है कि खुदावंद क्योंकि जहाँ पे आ जाता है, वहाँ जहाँ खुदावंद की हज़ूरी होती है, वहाँ पे ये जो मसा है ठहर जाता है और खुदावंद का, और पाकीज़गी की रूह जो है वो हमें पाक और साफ करती है। तो आप ज़रूर इसको करें। और दूसरा, अब हम सब ही खुदा उनके कह लें कि मसा किए हुए बंदे हैं, और खुदा उनका कलाम फरमाता है कि अब हम क्या है, परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या है, खुदा ने हमें काहिन के तौर पे चुन लिया है ना? तो इसलिए आप इसको खुद भी अपने पास रखें और कर सकते हैं रोटी और पानी को। तो खुदावंद हमें रोज-रोज जो है वो पाक और साफ करता रहे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद का शुक्र हो कि वो, मैं कहूँगी कि इस तरह से खुदावंद ने हमें गाइड किया कि हम रोज-रोज पाक और साफ हों। आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा 11 बाब और उसकी कहने हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, महज 10 आयतें पढ़ लेते हैं। हमारे साथ सनिया है और सोनिया शायद आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनिया सिस्टर नहीं है तो मैं पढ़ूंगी। हाँ जी, ठीक है। तो हम काशफा 11 बाब उसकी पहली आयत से आप 10 तक पढ़ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारा नहीं कवर कर सकेंगे। ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਲ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨੇ 1260 ਦਿਨ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ 2 ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦਿਨੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਬਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਪਰ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਭਾਖਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਦਿਨ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी सनिया। प्रेज लॉर्ड। और एक सरकंडा अजय की मानित मुझे दिया गया और मुझसे कहा गया कि उठ और खुदा की हैकल और कुर्बान गाह और इन्हें जो उसमें इबादत करते हैं नाप, मगर उस सहन को छोड़ दे जो हैकल के बाहर है, और इसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दिया गया है और वो मुकद्दस शहर को 42 महीनों तक पामाल करती रहेगी। 2 गवाह। और मैं अपने 2 गवाहों को ये इख्तियार दूंगा कि वो टाट पहनकर 1260 दिन तक नबूवत करें। ये जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो जमीन के खुदावंद के हुजूर खड़े हैं। अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो इनके मुंह से आग निकलती है और इनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो जर और सनिया आपकी आवाज बंद हो गई है। ओके चलें हम मैं सनिया जब वापस आती है तो फिर पढ़ेंगे। ये 11 जो चैप्टर है पिछले जो 10 चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो हाँ जी हेलो जी सॉरी सनिया हाँ मेरा हाँ हाँ चले पढ़े। सॉरी भाभी जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं 2 गवाहों से पढ़ूंगा अभी फिर से। पढ़ो पढ़ो। मैंने अपने 2 गवाहों को मैं ये इख्तियार दूंगा कि वो टाट पहनकर 1260 दिन तक नबूवत करें। ये जैतून के वो 2 दरख्त और 2 शमादान हैं जो जमीन के खुदावन के हुजूर खड़े हैं। और अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो इनके मुंह से आग निकलती है और इनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो जरूर है कि वो इसी तरह मारा जाए। इन्हें ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि इनकी नबूवत के दिनों में मीना ना बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि इन्हें खून बना डालें और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफतें लाएं। और जब वो अपनी गवाहियां दे चुकेंगे तो जो हैवान गहराव से निकलेगा वो इनसे लड़ाई करेगा और इन पर गालिब आएगा और इन्हें मार डालेगा, और इनकी लाश इस बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहां इनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और जुबानों और कौमों में से लोग इनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और इनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के बशिंदे इन पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन 2 नबियों ने जमीन के बशिंदों को सताया था। प्रेज लॉर्ड। हाँ जी प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस सनिया अंजना आपको बरकत दे। ये अभी जितना हमने पढ़ा है यानी इस चैप्टर में जो है वो ज्यादा मैं कहूँगी कि 3 बातें जो हैं
एक तो हैकल के बारे में बात है और फिर 2 गवाहों के बारे में, और इसमें तीसरा सॉरी 7वां जो नरसिंगा है वो फूँका गया है। यानी ये चैप्टर जो है इसमें 3 मैं कहूँगी कि जो पॉइंट हैं वो बड़े हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन पे बात हम कर सकें। जो इससे 10वां चैप्टर जो था उसमें हमने सिर्फ कह लें कि ये सीखा था कि वो जो छोटी-सी किताब थी, जो हमने सीखा कि वो बाइबल है, तो यूहन्ना अरब को दी गई कि वो इसको पढ़े, इसको हज़म करे, है ना? यानी खाए इसको, और जो नबूवत है वो करे, यानी उम्मतों के लिए, गैर कौमों के लिए और अहले ज़ुबान और बादशाहों पे नबूवत करने के लिए उसको, उस किताब को खुदावंद ने उसको दिया, या ऊपर से आवाज़ आई थी, फरिश्ते ने उसको दी थी, है ना? तो ये पिछले चैप्टर में हमने सीखा था, 10 चैप्टर में। 11 चैप्टर जो है ये हम जैसा कि थोड़ा स्टडी में सीख रहे हैं, या कह लें कि ये काशफा की किताब में कि हमने सीखा कि 6 बाब से लेके अ, ये 11 चैप्टर जो है यहाँ तक यहूदियों के नुक्ता नज़र से रोया जो है खुदावंद यूहन्ना अरब को दिखा रहा है ना? और उनके ही लिहाज से जैसे कह लें बातें कर रहा था, हमने सीखा कि जैसे नरसिंगों का फूँका जाना, 2 शम्मादान और अहद का संदूक जो है, या ऊद सोने की जो कुर्बानगाह थी, है ना? तो ये सारी ज़ुबान जो है ये उन यहूदी इस बात को समझते हैं, या नरसिंगे कब-कब फूँके जाते थे, ये सारा उनको पता है। जो हम कह लें गैर कौमों में से आए हुए हैं मसीही, हमें इन बातों की समझ नहीं है ना? ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, किया है, लेकिन हमें इन सारी बातों का पता नहीं है ना? जैसा कि अ, इस्राएलियों को पता है ना? तो इसलिए ये 11 चैप्टर तक कह लें कि अ, यहूदियों के नुक्ता नज़र से बातचीत जो है वो हो रही है, अभी तक हम सीख रहे हैं। और ये जो 2 गवाह हैं, इनका देखें जो एक टाइम पीरियड है वो भी बताया है कि अम, कितने हज़ार 1260 दिन तक वो नबूवत करेंगे। तो यानी ये साढ़े 3 साल का जो अरसा है बनता है, जो हम कह लें कि और आगे ये 12 चैप्टर में चल के हम देखेंगे कि जो मसीही हैं, जो हम जैसे पहले हमने सीखा कि उन पे साढ़े 3 साल तक ज़ुल्म और सितम होगा, या वो मारे जाएँगे, कत्ल किए जाएँगे, उनके सर जो हैं कलम किए जाएँगे। तो उनकी जो एक टाइम पीरियड है वो अगले चैप्टर में है, उसका भी यही लिखा हुआ है 1260 दिन तक उसकी उसके बारे में लिखा हुआ है, ये अगले हम चैप्टर में देखेंगे, है ना? तो इस कह लें ये पीरियड जो है ना, शायद मैं कहूँगी कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि ये हम साढ़े 3 साल का क्यों कहते हैं, तो असल में यहाँ उस कह लें बात का जवाब है कि 7 साल का पीरियड जो है हम दानियल की किताब में पढ़ेंगे कि 1 हफ्ता कहा गया है, यानी इस 7 साल के पीरियड को, है ना? तो उसमें से आधा हफ्ता या आधा कह लें हफ्ता या साढ़े 3 साल का ये वो नबूवत करेंगे, यानी ये यहूदियों का टाइम पीरियड है। और आगे 12 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मसीहियों का वो जो मुसीबतों का जो दौर है कह लें होगा, है ना? तो इसलिए ये 7 साल के अरसे को साढ़े 3-3 साल के दौर में या पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। ये खुद खुदावंद ने किया हुआ है, किसी इंसान ने नहीं, है ना? कि अ, पहले साढ़े, और ये तरतीब हमने पहले भी सीखा था कि अ, यानी खुदावंद जो है जिस तरह उसको रोया दिखा रहा है उस हिसाब से वो लिख रहा है। तो हमने उस हिसाब से इसका जो एक कलम तशरीह या सीखना जो है, या इसका जो निकालना है वो उस हिसाब से नहीं है, या उस तरतीब से नहीं है ना? क्योंकि ये एक ही बात को जैसे कहने के पहले यहूदियों के नुक्ता नज़र से देखा जाएगा या दिखाया गया है यूहन्ना अरब को,
اور दूसरी रोया जो वो देखेगा जब ये उसने यानी छोटी किताब जो थी वो खा ली, तो अब वो गैर कौमों के लिए या मसीहियों के लिए कह लें नबूवत जो है करेगा, है ना? और ये आज का जो चैप्टर है हमने थोड़ा इसका यानी पहला जो वर्सेस हैं कि ये हैकल के नापने की बात हो रही है ना? और कुछ जो मसीही हैं हमारे मेरा ख़्याल आपने भी सुना ही होगा, वो नहीं मानते कि जी जो तीसरी हैकल है अब बनेगी। क्योंकि कलाम हमें ये बताता है हम मसीहियों को कि अब जो हैकल है, खुदावंद का मंदिर जो है, वो हम हैं, हमारे बदन है ना? तो इसलिए अब तीसरी हैकल जो है, कुछ जो मसीही हैं, वो इस बात को मानते हैं कि अब तीसरी हैकल जो है वो नहीं बन सकती, है ना? लेकिन हमें कलाम ही बताता है या नबूवतें जो हैं पहले हो चुकी हैं कि तीसरी हैकल जो है वो बनेगी और उसी में कह लें कि वो जो एंटी क्राइस्ट जो है वो आके बैठेगा या वहाँ पे वो अपना बुत बनवाएगा, है ना? और कुर्बानियाँ जो हैं वो पहले जो 3.5 साल का अरसा है उसमें वो लोग इस्राएली चढ़ाएँगे, है ना? तो इसलिए ये कलाम में से हमें कह लें कि सबूत मिलते हैं कि तीसरी हैकल जो है वो बनेगी और कह लें कि इस दफ़ा जो हैकल है वो कोई सालों नहीं लगेंगे। अम, मैं एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता लेकिन वो कहते हैं कि ये कुछ दिनों या महीने में जो हैकल है वो बन जाएगी, कुछ इस तरह मैंने सुना है। तो इसलिए अब हैकल बनने में टाइम जो है वो नहीं लगेगा, जैसे कि पहले जो 2 दफ़ा हैकल बनी, तो उनको सालों लगे थे लेकिन अब जो है हैकल जब बनेगी, मंदिर जो बनेगा अब अ, तो वो बहुत जल्दी जो है वो बन जाएगा। तो इसलिए पहले 3.5 साल का अरसा होगा, उसमें जब अ, मुखालिफ़ मसीह आएगा, तो हैकल जो है उनको बनने की जो कह लें कि एक क्योंकि अब तक उनको इजाज़त नहीं है कि वो इस्राएली लोग जो हैं वो हैकल जो है बना लें, है ना? तो आज हम थोड़ी-सी इसी पे बात करेंगे कि जब तक वो हैकल जो उनकी अ, जो इस्राएली लोग हैं, वो बन नहीं जाती, वो तामीर नहीं हो जाती और वहाँ पे अपने जो मज़हबी वो उनकी रसूमात हैं, वो बहाल नहीं हो जाती, तो असल में तब तक कह लें कि वो अपने घर में यानी जो कि इस्राएल उनका घर है तो उनकी आज़ादी जो है वो बेमायनी है, इसराइलियों की। यानी वो हमें सबको पता है कि वो दुनिया से इकट्ठे हुए हैं, यानी तितर-बितर हो गए थे और फिर से खुदावंद ने उनको इकट्ठा किया मुल्क में। लेकिन उनकी जो हकीकी कह लें कि आज़ादी है जो कि आजकल हमारे नारा लगा हुआ है, तो असल में उनकी आज़ादी अब तब तक बेमायनी है, जब तक उनकी हैकल जो है उनका मंदिर जो है वहाँ पे बन नहीं जाता इस्राएली कौम का, है ना? तो तब तक वो उनकी जो एक क्योंकि मज़हबी जो उनके जो सारी कुर्बानियाँ थी वो चढ़ाते थे, जो बेदी थी वो सारा कुछ अभी उनका नहीं बना। इसलिए हैकल जो बनना है वो उनके लिए मंदिर जो बनना है वो बहुत ज़रूरी है ना? और जब हैकल जो है दोबारा से बहाल होगी, तामीर किया जाएगा, ये हमें जो है ज़करिया का जो कल है बुक है, सहीफ़ा है, उसमें हमें मिलता है, अभी हम पढ़ते हैं, है ना? तो तब तक वो जो हैं खुदावंद की उस तरह से सारी जो रसूमात हैं वो नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है ये हैकल जो है वो यरूशलेम में फिर से दोबारा से ज़रूर कह लें तामीर जो है होगी, खुदावंद वो सारे कह लें उनके लिए मुहैया करेगा कि हैकल जो है दोबारा तामीर की जाए, है ना? दोबारा हैकल बने। तो आज हम थोड़ा-सा सीखेंगे कि ये जो नाप रहे हैं, इसके बारे में नबूवतें जो हुई हुई हैं,
उनके लिए हम हवाला एक पढ़ते हैं, दानियल नबी के उसका 9 बाब और उसकी 27 आयत पढ़ते हैं। जी, सनिया और अंजना। प्रेज लॉर्ड भौजी, डैनियल 9 बाब। उसकी 27 आयत। हाँ। ओके। और वो एक हफ्ते हाँ जी, मुझे लगता है फिर सनिया का खराब हो गया। अंजना आप पढ़ना। हाँ जी 9 बाब उसकी ਅਤੇ 27 है। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬੰਨੇਗਾ ਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਜੜੇ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यानी वो अहद बांधेगा, जो एंटी क्राइस्ट है, जो मुखालफे मसीह है, और हैकल जो है, यानी जो पहला हफ्ते का जो क्या लें पीरियड है, आधा हिस्सा जो है 3.5 साल का अरसा जो है, उसमें हैकल जो है वो जो है वो बन जाएगी। ये हमें डैनियल की किताब में से भी पता चलता है कि तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर कौन सी आयत? हाँ जी, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निफ्स यानी आधे हफ्ते में वो जो वहाँ पे कुर्बानियाँ जो हैं कर रहे होंगे इज़राइली कौम जो है, वो बंद करा देगा। और वहाँ पे जो उजाड़ने वाली मखलूक़ात हैं वो अ, एक जगह लिखा हो के नस्ब कर देगा और यहाँ पे रखी जाएँगी, है ना? और ये इसको कुछ लोग बुत कहते हैं कि बुत खड़ा किया जाएगा, और कुछ का ख़्याल है कि वहाँ पे वो सारे एक पीछे भी पुराने जब तो सूअर का जो था एक किस्म की कुर्बानी चढ़ाई गई थी। तो इसलिए हैकल अगर बनी होगी तो वहाँ पे वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए हैकल वहाँ पे या मंदिर जो है वहाँ पे बनना जो है यरूशलेम में ज़रूरी है। और ये क्योंकि ये नबूवत जो है ये हुई हुई है। तो इसलिए ये जो मुखालफ़े मसीह है, ये अभी जो हमने पढ़ा है ना, कि वो क्या करेगा कि उजाड़ने वाली जो उस जगह पे मुकर्रर कर देगा। तो इसलिए यहाँ अब अगर हम ये देखें कि पहले वहाँ पे हैकल जो है या मंदिर जो है बना होगा, तो फिर ही वहाँ पे ये करेगा यरूशलेम में या उस मुकद्दस जगह पे हमारी जो या यहूदियों की कह लें इसराइल की पाक तरीन जगह जो है या पाक मकाम जो है, वो मुकद्दस हैकल है ना? शहर मुकद्दस या जो पाक तरीन उनका मकाम है या वो हैकल है, वो मंदिर है। तो इसलिए वो पहले बनना ज़रूरी है। यानी जब मुखालिफ़ मसीह आएगा, एंटी क्राइस्ट जो आएगा तो वो उस शहर में, शहर मुकद्दस यानी यरूशलेम में जो उनके साथ है वो अहद बाँधेगा और जो हैकल है, मंदिर जो है, वो तामीर जो है किया जाएगा। और लेकिन क्या करेगा वो अ, जो हफ्ता ये लिखा हुआ है कि आधे हफ्ते में, है ना? यानी निफ्स हफ्ता में वो जो वो ऊपर कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे, हदिये नज़राने चढ़ाया करते थे, वो बंद कर देगा, है ना? तो इसलिए इससे भी ये हमें पता चलता है कि हैकल जो है, तामीर जो है वो की जाएगी। और मुखालिफ़े मसीह जो 7 साला हुकूमत के बाकी आधे हिस्से में इसराइली इसके हाथों यानी पहले हिस्से में हमने देखा कि मसीहियों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम उसने किया था, लेकिन जो दूसरा हिस्सा होगा, उस पे जो यहूदी हैं, इसराइली कौम है, उस पे वो ज़ुल्म-ओ-सितम करेगा। यानी पहले उसके साथ उसकी सुलह होगी इसराइलियों के साथ और वो उनके साथ अहद बाँधेगा, लेकिन फिर वो इस अहद को भी तोड़ देगा, वादे को तोड़ देगा और उनकी जो वो जो
कुर्बानियां कह लें चढ़ाते होंगे, उनको बंद करा देगा। और इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं कि वो ये कौन सा दौर है, यानी ये जो 3.5 साल का अरसा है। यिर्मयाह 30 बाब उसकी 7 आयत में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह हाँ जी 30 ठीक बाब उसकी के 7 वर्ष। ये दौर जो है, हाँ जी 7 में। ਹਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਉਂ ਆਵੇਗਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਪਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी बस ठीक है। यानी 7 आयत जो हैं उससे हमें पढ़ता, अगर इससे ऊपर भी पढ़ें तो यानी वो कहेगा कि सलामती है, लेकिन वहाँ पे सलामती नहीं होगी। और जो ये मुसीबत किसकी है? याकूब की। याकूब का जब नाम बदला था खुदावंद ने, खुदावंद के फरिश्ते से जब इसने, आप सबको याद होगा कि याकूब ने कुश्ती की थी और इसका नाम जो था सॉरी बदल दिया था, इसराइल रखा था, है ना? और इसराइली कौम या इसके जो कह लें जो बच्चे थे, बेटे थे, उनसे आगे नस्ल चली थी जिसको हम कहते हैं इसराइली कौम, है ना? या इसराइल की औलाद, है ना? तो ये इसराइल कौन है? याकूब। तो याकूब की जो उसका नाम जो था खुदावंद ने तब्दील किया था। तो याकूब को जब कह लें उसकी पुरानी इंसानियत जो थी या उसका जो बिहेवियर था, या वो खुदा ने तब्दील किया था। सॉरी खुद आप सबको शायद पता हो कि याकूब का मतलब है धोखाबाज या धोखा देने वाला। तो खुदावंद ने उसका नाम जो था तब्दील कर दिया था। तो अगर बाइबल में जब भी याकूब का जिक्र हो तो असल में ये इसराइलियों का जिक्र हो रहा है, या एक मिनट पानी पीना सर। तो इसलिए ये याकूब की मुसीबत की बात हो रही है। जब इसराइल की बात होगी तो वो कह लें कि हम भी रूहानी तौर पे इसराइली हैं ना। तो ये याकूब की मुसीबत की इस दिन बात हो रही है कि अफ़सोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का दिन है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो रिहाई पाएगा जब 7वां नरसिंगा जैसे वो हम आगे पढ़ेंगे कि फूँका जाएगा तो वो उसकी कह लें रिहाई का या उसकी। और हमने ये भी सीखा था कि ये जब इस मुसीबत आई और मैं ज़करिया की किताब में हमने पढ़ा था कि उसमें से 1/3 जो थी उनको खुदावंद बचा लेगा, उन बकिया को खुदावंद जो है वो बचाएगा और उनको कह लें कि सोने की तरह ताएगा या उनकी मैल को जो है वो साफ कर देगा, है ना? तो ये जब मुसीबत आएगी तो मेरा ख्याल है एक हवाला हम पढ़ते हैं। ये जो लास्ट बुक है पुरानी अहदनामे की मलाइकी, उसमें लिखा हुआ है कि जब ये 2 गवाह, मलाइकी किताब, आप इसका आखिरी जो चैप्टर है वो निकालना और उसकी आखिरी 3 आयतें पढ़ना। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ मूसा ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹਰੋਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ।
ਉਹ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਓਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਮਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, यानी ये जब 2 गवाह आएंगे, एलिया आएगा और तो वो क्या करेगा कि और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। और ये कौम जो है, इस्राएली कौम यानी उस वक़्त जो बचेंगे, वो फिर से खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे या खुदावंद के साथ सामने जिस तरह हमने ये कफ़ारे का दिन करते थे इस्राएली कौम, हमने पीछे थोड़ा सीखा था। और इसको वो 10 दिन की जो मुसीबत है वो भी कहा गया है और कफ़ारे का दिन भी कहा गया है, क्योंकि इस वक़्त ये लोग तौबा करेंगे, इस्राएली कौम जो है। और जो मूसा के ज़रिए शरीयत दी गई थी, जो फ़राइज़ और अहकाम दिए गए थे, जो हूरब के पहाड़ पे दिए गए थे, वो मूसा के ज़रिए दिए गए थे, तो वही हुक्म जो है उन पे ये अमल करेगी। और ये उस तरह से खुदावंद फिर इनको पाक और साफ जो करेगा। ये ज़करिया की किताब में है ना, कि और खुदावंद फरमाता है सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस तिहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। और वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही खुदा है। ये ज़करिया की जो किताब है उसका 13 बाब और उसकी 3 से 9 आयत में है। तो खुदावंद जो है यानी उस वक्त जो है खुदावंद इनको पाक और साफ करेगा और ये तौबा करेंगे जो इस्राएली बचेंगे 1/3 जो बचेंगे, है ना। क्योंकि ये मुसीबत के दिन खुदावंद जो है खुदावंद को पुकारेंगे जब ये 3.5 साल का जो मुसीबत का दौर जो है बड़ी मुसीबत का, इसको हमने ये भी सीखा कि ये खुदावंद के कहर का दिन, खुदावंद का रोज़े अज़ीम इसको कहा गया है। इस पीरियड में ये जो 1/3 लोग हैं वो आहो नाला करेंगे या तौबा करेंगे या उनके दिल फिर से खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे। लेकिन इन सभी हमने देखा कि 1/3 लोग, बाकी जो इस्राएली कौम है वो वो खुदावंद की तरफ नहीं मुड़ेगी, है ना। तो इसलिए खुदावंद 1/3 जिनके ऊपर खुदावंद ने मोहर की हुई है, ये हमने पिछले चैप्टर में है उसमें सीखा, है ना, कि जिनके ऊपर खुदावंद की मोहर जो है सील की हुई है, ये वो लोग हैं जिनके दिल जो हैं वो फिरेंगे खुदावंद की तरफ और वो फिर से खुदावंद की जो शरीयत है जो मूसा के ज़रिए उनको मिली थी उस पे अमल करेंगे। और एलिया और ये आगे हम जब 2 गवाह सीखेंगे तो उस वक़्त बात करेंगे, है ना। लेकिन ये 3.5 साल का जो अरसा है इसको याकूब की मुसीबत का दिन जो है या वक़्त जो है वो कहा गया है। लेकिन खुदावंद इनको इसमें से निकालेगा, है ना। और ये जो नापने का आयत है, यानी पहली आयत जो है यानी ये तो अभी हमने सीखा कि हैकल जो है या मंदिर जो है उसके लिए यरूशलेम में बनना ज़रूरी है। तो लेकिन हम पहली आयत में देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि खुदा का मक़दस और कुर्बान का और इसमें के इबादत करने वालों को नापने के लिए कहा गया। और यही बात जो है हिजकिय्याल जो 40 बाब है वो काफ़ी लंबा है, हम पढ़ेंगे नहीं। 40 बाब में यही बात पुराने अहदनामे में कही गई थी हिजकिय्याह को कि वो नापने के लिए हैकल की जगह या इसके जैसा रहे। और फिर यही बात ज़करिया नबी के जो है उसमें भी यरूशलेम की जो फसीलें हैं और उसको नापने के लिए कहा गया था। और ये हम आयत पढ़ते हैं क्योंकि 40 चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है।
लेकिन ज़करिया 2 बाब उसकी पहली 1 से 5 आयत हम पढ़ते हैं कि ये नापने का जो यहाँ पे यूहन्ना अरब को खुदावंद ने कहा है, यही ज़करिया नबी भी को भी कहा था खुदावंद ने। तो ये हैकल के बनने की बात जो है हो रही है या उसके अंदर जी अंजना आप निकालना ज़करिया 2 बाब उसकी पहली 5 आयतें। जिरमिया दा खाते कि जकरिया अच्छा डिफरेंट है। ज़करिया हाँ जी, ए मलाइकी दे बाद ही ये। मतलब नहीं इस नहीं तो लाइक पहले अच्छा पहले पहले हो सकता बात तो नहीं। हाँ जी जकरिया मिल गई चैप्टर में जी। 2 चैप्टर ठीक है कि यहाँ बस पे भी हाँ जी, पहली आयत से पढ़ें। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਛਣ ਦੀ ਜਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਫਸੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਓਏ ਸਿਯੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ। ਤਦ ਉਹ ਜੀਉਣਗੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸਿਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ मैं आके तेरे विच वसांगा। यहोवा दा वाक है। हाँ जी, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें भी ज़करिया नबी जो था उसको भी जो यरूशलेम है वो नापने के लिए कहा गया और हिजकिय्याल को भी कहा गया और अब हम यूहन्ना को देख रहे हैं और ये खुदावंद की जो मंदिर है और खुदावंद का जो शहर है, शहर मुक़द्दस उसको और उसकी फसीलों को यानी कि नापने के लिए खुदावंद ने कहा है ना? और आछी दीवार जो है वो कह लें कि खुदावंद ने उनके चौगिर्द जो है चारों तरफ खड़ी कर दी है ना? ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि जो खुदावंद है, खुदावंद ने जो फसीलें हैं खड़ी कर दी हैं या आतिशी दीवारें जो हैं खड़ी कर दी हैं और खुदावंद ने इस बात का कह लें कि इज़हार किया है कि ये मेरी मलकियत है, खुदावंद की है, जहाँ-जहाँ खुदावंद ने दीवारें खड़ी की हैं और खुदावंद ने वो जो नापने के लिए उसको कहा है, तो इसलिए खुदावंद ने उसको ये ज़ाहिर किया है कि वो खुदावंद की मलकियत है ना? उसमें इबादत करने वालों को नाप ये खुदावंद ने इस बात का किया है कि ये 1 लाख जो 44,000 इस्राएली हैं, जिन्हें फरिश्तों ने मोहर किया था और जो इस काबिल पाए गए थे कि 7 साला मुसीबत के दूसरे हिस्से में बचाए जाएँ, ताकि 1000 साला बादशाही में दाखिल हो सके, है ना? तो जो इबादत थी उसको नापने के लिए जब कहा तो ये इसका मतलब ये है कि वो जो खुदावंद ने 1,44,000 जिन पे खुदावंद की मोहर लगी हुई थी, वो इबादत करने वाले उस वक़्त और कोई इबादत करने वाले जो थे वो वहाँ पे नहीं थे, है ना? ये जो अ, जो कह लें कि कौन-सी आयत है? 8 आयत जो है ये 7 बाब उसकी पहली आयत से 7 8 हद तक पढ़ना, काशफा 7 बाब हाँ जी पहली से 8 ठीक है। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂੰਟਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਚੈਪਟਰ
हाँ जी, 7 चैप्टर। प्रकाशित वाक्य ना, ठीक है। हाँ, हाँ। ਇਸਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਤੇ 4 ਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਹਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,44,000 ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ। ਰਾਉਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਯਿਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਜ਼ਬੂਲਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਯੋਸਫ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना, तो ये हमने चैप्टर में देखा था कि जो रोज़े अजीम या बड़ी मुसीबत या खुदावंद का वो दिन आने से पहले क्या था, खुदावंद ने ये अपने जो लोग थे उनके ऊपर मोहर जो थी वो लगा ली थी। इसलिए खुदावंद की ये क्या है, मलकियत हो गए, और यही दुआ करने वाले थे उस वक्त जमीन के ऊपर रहने वाले जो थे। तो खुदावंद ने पहले ही इनको जो ये जो फरिश्ते थे उनको, है ना, जिन्होंने चारों जमीन के चारों कोनों हवाओं को थामा हुआ था, है ना, उनको कहा, खुदावंद ने कहा कि अभी नहीं, पहले खुदावंद के जो लोग हैं उन पे मोहर हो जाए। तो इसलिए ये खुदावंद की मलकियत है, ये जो दुआ करने वाले हैं, ये जो नापा है उसने फरिश्ते ने, है ना, तो इनको जो था वो अलग कर लिया, या इनको खुदावंद ने, इनके कहलें चौगिर्द जो है आछी दीवार या फसीलें जो थी वो खड़ी हो गई थी। खुदावंद इनको बचाएगा। और जो सहन था वो खुदावंद ने कहा कि उसको क्या कर दे, खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। तो जो ये सहन है, पता नहीं आज वो पिक्चर्स चल नहीं रही आईपैड, तो इससे थोड़ा ये बाहर का हिस्सा है, जो हैकल है, जो मंदिर है, जो पहले और अब जो बनाया जाता है, ये बाहर का हिस्सा है जहाँ पे कुर्बानी की जाती थी। ये यानी सहन है। तो यहाँ पे जो लोग होंगे, हमने सीखा था कि ये इसको कह लें कि नई जमीन कहा गया है। तो ये खुदावंद ने गैर कौमों को दे दिया है। और ये आपको दरवाजा शायद नजर आ रहा हो, तो ये अंदर का हिस्सा है जहाँ पे ये दुआ करने वाले हैं, या हमने सीखा था कि ये कहाँ खड़े होंगे, जो हमारे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, या वो 4 जानदार कहाँ हैं, वो पाक तरीन मकाम है, यानी वो इस दरवाजे के अंदर है जहाँ ये सहन है। तो उनको जो है वो नापा गया, और या उनको उनके चौगिर्द कह लें फसीलें जो है वो खड़ी कर दी, और वो अंदर हैं। लेकिन ये बाहर का हिस्सा जो है, ये सहन जो है, यहाँ पे गैर कौम है। और खुदा, और उन्होंने क्या किया, इसको पामाल किया, या इसको बेरहरमत किया, बाहर के हिस्से को, सहन को। मुखालफे मसीह इसराइलियों से अपना अहद तोड़ेगा, और खुदा के मकदस को, जो कि मुकद्दस शहर यरूशलेम में है, दाखिल होगा, और मुकद्दस मकाम में उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब करेगा। ये मत्ती 24 बाब और उसकी 15 आयत में हमें मिलता है। और हाँ जी, फिर उसके बाद हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਤੀਏ ਨੂੰ 1, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। नहीं अंजना, मत्ती 24 बाब उसकी 15 आयत अच्छा, जिसमें 25 है है। उजाड़ने। हाँ, ठीक है। बस जब तुम उपरांत ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हाँ, पवित्र था यानी वही मंदिर में वो आएगा, वो मुखालफे मसीह जो है ना, और इस जगह पे वो मकरूह चीज नस्ब करेगा, यानी अपनी जो मूरत है या अपना जो वो बुत है बनवाएगा और वो वहां पे खड़ा करेगा। और फिर और इसको पालूस रसूल ने भी हमें बताया है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 4 आयत। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। ये अगर ऊपर का भी पढ़ें और थोड़ा नीचे तक आप पढ़ना 6 आयत पे। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ। ਹੁਣ हाँ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਓ। ਮਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो वो हैकल में यानी खुदावंद के मंदिर में आएगा और अपने आप को कहेगा कि मैं खुदा हूँ, है ना? और वो बुत जो है अपना बनवाएगा, है ना? और वो बेदीन है या वो हलाकत करने वाला या जो एंटी क्राइस्ट मुखालफे मसीह है, ये अपना बुत जो है वो वहाँ पे बनवाएगा। तो इसलिए वहाँ पे यरूशलेम में जो तीसरी हैकल है वो बनना कह लें कि ज़रूरी है। जो नबूवतें हैं वो पूरी होंगी क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है ना? तो इसी तरह होगा। इसलिए ये हमने थिस्सलुनीकियों के खत में भी पढ़ा और इसमें भी अ, हमें पता चलता है कि जो यरूशलेम है या वो यरूशलेम में जो मुकद्दस हैकल है वो दोबारा से तामीर होगी और खुदावंद ने ये पालूस रसूल के ज़रिए भी खुदावंद ने ये जो कह लें कि नबूवत जो है ये की हुई है। इसलिए खुदावंद जो है वो जो मुखालफे मसीह है वो उस हैकल को पहले 3.5 साल के अरसे में बनवाएगा, यानी उनको इजाज़त देगा यहूदियों को और लेकिन फिर उनसे अहद जो है तोड़ लेगा जब वो कुर्बानियाँ कर रहे होंगे। अब ये अभी हमने जो दानियल की किताब में पढ़ा 9 बाब में कि वो आधे हफ्ते में यानी 3.5 साल के पहले 3.5 साल तो वो करने देगा, लेकिन बाकी जब दूसरा 3.5 साल शुरू होगा, जब यहूदियों का मुसीबतों का जो दिन है, बड़ी मुसीबत का दिन कहा गया है, उसमें वो उनकी जो है वो बंद कर देगा, जो कुर्बानियां हैं वो बंद कर देगा और खुद जाके अपनी कह लें कि वो बुत बनवाएगा और खुद जाके ये अभी हमने जो उसमें थिस्सलुनीकी में भी पढ़ा कि वो अपने आप को कहेगा कि मैं खुदा हूँ। यानी तब जब ये वो सब कुछ करेगा फिर इस्राएलियों की आँखें खुलेंगी, फिर वो तौबा करेंगे और ये 2 गवाह उस पीरियड में आएँगे। पहले दूसरे जो 3.5 साल का अरसा जब शुरू होगा, जब मुसीबत का दौर और
रोज़े अज़ीम या खुदा का कहर का दिन जो है वो शुरू होगा, तो ये 2 गवाह जो हैं वो आएँगे। ये हम कल देखेंगे। एक हवाला हम और पढ़ते हैं, ज़िक्रिया 2 बाब उसकी 10 आयत, और बाकी हम फिर कल करेंगे। जी 2 बाब 10 10 आयत। हे ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ है आमीन। ये वाली है? हुँ। हाँ जी, 1 मिनट। ठीक है मैं पढ़ी ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ हे ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ है। हाँ जी, यानी ये जो बकिया जो बच जाएगा, जो और खुदावंद उनके दरमियान आके रहेगा, जो बचे हुए लोग होंगे जिनके ऊपर खुदावंद ने मोहर की हुई है, जिनको खुदावंद ने जो उसकी इबादत कर रहे थे। ये हमने जो देखा कि वो नापा जो दुआ करने वाले मुकद्दस लोग थे, जो खुदावंद के बचे हुए लोग थे, खुदावंद जो है उनके दरमियान, क्योंकि वो खुदावंद की क्या है, जो अ, जो इस्राएली कौम क्या है, खुदावंद की चुनी हुई कौम है, खुदावंद की क्या है, सहून है, दुख्तरे सहून है। तो सिर्फ वो लोग जो हैं, जो बचेंगे, जो 1/3 खुदावंद उनके दरमियान आके क्या करेगा, सुकूनत करेगा। और खुदावंद जो है मुकद्दस शहर में जो उनका हिस्सा होगा, जैसे हमने इस्तिश्ना और पीछे खरूज की उसमें कि यरूशलेम में जब वो दाखिल हो गए थे, तो उनके हिस्से जो थे या उनकी जो मिरास थी वो बांटी गई थी या दी गई थी। तो इसी तरह ये जो सहून के लोग होंगे, ये जो बकिया होगा खुदा उनका इसराइली कौम का, ये यरूशलेम में दाखिल होंगे। ये अब आगे चल के हम सीखेंगे कि जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, जब खुदावंद आएगा, खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, तो ये 1000 साला बादशाही में ये जो बकिया होगा, ये जो बच जाएंगे, जिनके ऊपर मोहर लगी थी, तो ये जब ये 2 गवाह आएंगे, हमने वहां पे देखा मलाइकी की किताब में कि क्या है, ये फिर से तौबा करेंगे और शरीयत पर अमल करेंगे और खुदावंद के हुक्मों पे अमल करेंगे। ये जो बकिया होंगे, ये जो थोड़े से लोग होंगे, ये जो इस्राएली जो खुदावंद के आगे उसी तरह झुकेंगे और तौबा करेंगे। और वो हमने मलाइकी में पढ़ा कि बाप का दिल बेटी की तरफ और बेटे के बाप की तरफ मोड़ेंगे। ये जो 2 गवाह जब नबूवत करेंगे, मनादी करेंगे, और फिर खुदावंद जो है इन लोगों को या इनको बचाएगा और नया यरूशलेम जो है अ, उनमें दाखिल होंगे। ज़िक्रिया 14 बाब उसकी 2 आयत पढ़ना। बस ये लास्ट है। हाँ जी 14 मैं बाब उसकी ਸਾਰੀਆਂ 2 ਕੌ- आयत। हुँ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। आमीन। हाँ जी। हाँ, ये अगर पहली और 7वीं आयत तक पढ़ें कि ये खुदावंद का कब टाइम की बात हो रही है, खुदावंद का दिन, यानी वही खुदावंद का रोज़े अज़ीम जब आएगा। और जो ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ हर मज़दून की जंग। हाँ जी। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ हुँ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੱਠੋਗੇ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਆਸਲ ਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠੇ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ हाँ जी, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੀਮੇ ਧੀਮੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये मतलब जब 7वां नरसिंगा फूँका जाएगा और हर मज़दून की उस वक़्त जंग हो रही होगी, है ना? तो खुदावंद आएगा, तो जो इस्राएली कौम है या यरूशलेम का, उस वक़्त ये हाल होगा कि सब कौमों ने उसको घेरा होगा, और उस वक़्त क्या है, खुदावंद आएगा, लिखा हुआ है। तब तीसरी आयत में, तब खुदावंद ख़ुरूज करेगा, यानी खुदावंद जो है वो आएगा, और जैसे पहले जंग किया करता था, तब भी खुदावंद जो है उनके लिए जंग करेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए जंग करेगा। और अ, ये मेरा ख़्याल किस आयत में है? 6ठी आयत में है मेरा ख़्याल है, कि और उस रोज़ रोशनी नहीं 5वीं आयत है कि कदूसी उसके साथ होंगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ होंगे, यानी पवित्र लोग जो हैं, यानी यहाँ पे फरिश्तों का ज़िक्र नहीं है, पवित्र लोगों का ज़िक्र है। इसलिए कुछ लोग यानी ये समझते हैं कि फरिश्ते तो खुदावंद के पाक लोग जो हैं, पवित्र लोग जो हैं यानी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन उसके साथ होगी। जब जंग के लिए खुदावंद आएगा, तो ये आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जब 7वां नरसिंगा फूँका जाएगा, लेकिन आज हमने थोड़ा ये सीखा है कि यरूशलेम में जो तीसरी हैकल है, वो बनना पहले ज़रूरी है, और खुदावंद ने किन लोगों को नापा या किस हिस्से को नापा, जो सिर्फ़ पाक मकाम है और पाक तरीन मकाम, और सहन जो था वो उसको एंटी क्राइस्ट कह लें, या जो गैर कौमें हैं वो क्या करेंगी, बेहुरमत करेंगी उसको 42 महीने तक, यानी कि 3.5 साल के अरसे तक जो सेन है जहाँ पे ये कुर्बानी होती थी ये वाला हिस्सा जो है, तो लेकिन अंदर का हिस्सा जो है पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के खुदावंद ने क्या किया, आछी कह लें दीवारें खड़ी कर दी और फसीलें जो थी वो खुदावंद ने खड़ी कर दी थी। तो इसका मतलब है जो दुआ करने वाले लोग थे, यानी कि वो मुकद्दस लोग जो थे, जो खुदावंद ने जिनके ऊपर पहले से मोहर जो थी वो लगी हुई थी, खुदावंद ने वो उनको अलग कर लिया कि वो मेरी मलकियत है, उनको टच ना करें। उनको खुदावंद ने बचा लिया, और उनको क्या करेगा खुदावंद सोने की तरह कह ले के ताएगा। और खुदावंद इसलिए क्योंकि ये देखे जो पहली आयत है उसमें ये लिखा, उसमें कि इबादत करने वालों को नाप, यानी इबादत उस वक़्त वो लोग कर रहे होंगे, यानी वो जो जिन पे मोहर लगी हुई है जो कुर्बान का जहाँ पे छोटी जो वो क्या उसको बोलते हैं, गोल्डन जो बेदी थी, जो तख्त के आगे जिसको वो वाली जो बेदी थी, वहाँ पे जो लोग हैं उस कुर्बानगाह की बात हो रही है। और वहाँ पे क्या आते हैं, जैसे अब हम नए आदनामे के मसीही जो हैं वो क्या कहते हैं फजल के तौर पे, कि हमारी दुआएं बखूर की माने, खुशबू की माने या धुएं की माने जो है वो खुदावंद तक पहुँचती हैं। तो इसलिए वो वाला एरिया जो था, पाक मकाम जो था, वो खुदावंद ने उसके चौगिर्द कह लें फसीलें जो थी खड़ी कर दी थी, दीवारें जो थी खड़ी कर दी थी, उनको नुकसान नहीं पहुँचा था, लेकिन बाकी जो सहन था, उसको उन्होंने पामाल किया, उसको उन्होंने एंटी क्राइस्ट ने, मुखालफे मसीह ने। तो इसलिए ये इबादत करने वाले कौन लोग थे उस वक़्त, जो कुर्बानगाह के जो बेदी थी,
जहाँ पे बखूर जलाया जाता था। तो इसलिए वो ये इस्राएली लोग हैं। इसलिए कुछ ज़ाहिर है मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती कि बाकी सारे क्या कहते हैं, सबकी अपनी-अपनी स्टडी है। जैसे उनको तो इसलिए ये सिर्फ़ उस वक़्त कौन लोग हैं जो कुर्बान गाह यानी कि इस्राएली हैं। वहाँ पे उस वक़्त मसीही जो हैं वो नहीं होंगे। मसीही जो उस वक़्त ज़मीन पे होंगे, जो नामी मसीही जो बेवकूफ़ कवारियाँ ज़मीन पे रह गई थी। तो लेकिन हमें पता है कि जिन्होंने छाप ले ली, वो किस गिनती में शामिल हो जाएँगी, जो आग की झील में डाले जाएँगे। तो इसलिए उनका कह लें अब मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब वो क्या है शैतान के साथ उस आग की झील में डाले जाएँगे क्योंकि जिन्होंने वो छाप जो है ले ली है एक दफ़ा, उसका कोई हल नहीं है। ये हमें कलाम बताता है कि उस वक़्त कोई माफ़ी या वो नहीं है। कि आपने छाप ले ली, बाद में शायद आपको कोई ख़्याल आया कुछ, हमें बाइबल ये नहीं बताती कि वो उस वक़्त तौबा करेंगे, माफ़ी माँगेंगे और खुदावंद उनको बचाएगा, है ना? तो जिसने एक दफ़ा छाप ले ली, वो जो उसका एंटी क्राइस्ट का नंबर है 666 और उस पूरे सिस्टम का, तो उनकी जो माफ़ी है, वो नहीं है। वो इसलिए खुदावंद हम सबको उस वक़्त से या अभी भी जिनके ऊपर ये वाली मुसीबतें आ रही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करने के लिए कहा जाता है, तो हम जो मसीही हैं वो इनकार ना करें क्योंकि फिर उनकी जो जगह है, जो मसीह का इनकार कर देगा, यीशु को छोड़ देगा उसकी जो जगह है वो आग की झील होगी, है ना? तो इसलिए खुदावंद हम सबको फ़ज़ल दे कि हम कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार ना करें, उसके लिए जान दें, बल्कि खुशी-खुशी दें कि हमारा फिर अजर जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जान देगा, उसका अजर बहुत बड़ा है। वो कहाँ पे होगा? जहाँ बखूर जलाया जाता था, जहाँ वो सोने का जो कह लें बेदी थी, कुर्बानगाह बनी हुई थी, उसकी जगह वो होगी। तो इसलिए हम खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी, चाहे वो कितना छोटा है, आप उसको ये समझाएँ क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम बच्चों से छुपाएँ या खुद ही अपने आप को ये कबूल नहीं हम कर रहे कि हमारे ऊपर ये वक़्त नहीं आ सकता या तो इसलिए खुद भी इसको वो सीखें और इस तरह का अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह पे रखें और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएँ। क्योंकि मैंने बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं, छोटे जैसे कह लें 3 साल के, 4 साल के बच्चों को भी माँ-बाप सिखाते थे कि यीशु का इनकार नहीं करना, चाहे आपको वो किसी भी तरीके से मार दें। ये सीरिया में या इधर जहाँ पे भी ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है अभी, है ना? तो बहुत बच्चों को बच्चों ने अपनी जानें दी खुदावंद यीशु मसीह की खातिर। तो इसलिए आप खुद भी इसको कह लें याद रखें और इसको सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। किसी भी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। वो छाप जो है वो नहीं लेनी क्योंकि अभी तो वो छाप नहीं है लेकिन अब यानी वो हमें कहते हैं या जो लोग सताए जा रहे हैं कि यीशु का इनकार करो अ, या अ, हम तुम्हें मार देंगे, है ना? तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग इनकार कर देते हैं, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जानें दे रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम अगर इस वक़्त अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना क्योंकि जिसने इनकार कर दिया, उसका कोई कह लें कि हल नहीं है। तो खुदा हम सब आप सबको और मुझे भी फ़ज़ल दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ज़ोर दे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी से चलें, तो हमें वो ज़िंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। So God bless you. Back to Wafa. गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हम सबको भी इसके कलाम के वसीले से खुदावंद बहुत बरकत दे। और जिस तरह अभी एक हवाला पढ़ा गया कि उन्होंने अपने जिसको 5 तोड़े दिए उसने 10 बनाए, जिसको 1 तोड़ा दिया उसने 2 बनाए। हम भी इसी तरह हों कि हम ये कलाम को सुने और हम इस पे अमल करें और दूसरों को भी ये खुदावंद की खुशखबरी पहुंचाने के वसीला बने।
और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दें, फिर हम लास्ट प्रे करें। वफा सिस्टर, जी जी, अब मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ओके ओके, ठीक है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। ठीक ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਬੋਲ, ਜੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਧ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਫਤਾ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਦਫਾ ਦਫੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੇਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके ओके, ठीक हो गया। शुक्र करता है आसमानी तूने ये मौका दे के तेरे हुजूर में आए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों का शुक्र अदा कर सके हैं खुदावंद। तू हमारा खालिक और मालिक, तू ये हवा खुदावंद है खुदावंद। तू हमारी पनाह, तू हमारा किला, तू हमारी चट्टान है खुदावंद, और हमारा भरोसा तेरे ऊपर है खुदावंद। और एक तो हम सब तेरे ऊपर ईमान रखते हैं कि एक तो तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद, और एक तो इस चीज पे एक तो हम फख्र करते हैं कि एक तो हम जिंदा खुदा को मानने वाली कौम है खुदावंद। एक तो आपका शुक्र करते हैं कि एक तो आपने हमें एक तो अपनी कौम बनाया, अपने बेटी बेटियां बनाए, हमें अपनी मिरास में एक तो हिस्सा बख्शा है खुदा, इस खूबसूरत मिरास में एक तो जिसमें एक तो आपने हर तरह की एक तो नेमतें बरकतें एक तो अपने बच्चों के लिए रख छोड़ी हैं खुदा। आपका शुक्र करते हैं खुदा इन तमाम नेमतों बरकतों के लिए एक तो जो आप हमें हर रोज अता फरमाते हैं खुदा। फिर भी एक ना हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है खुदा। एक तो आपके कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम किन चीज़ों की ज़रूरत है खुदा, लेकिन फिर भी एक ना हम आपके बच्चे हैं खुदा, हम आपके हुजूर आते हैं खुदा, अपनी तमाम इल्तिजाएं लेके, दरख्वास्तें लेके खुदा, अपने दुख लेके, बीमारियां लेके, तकलीफें लेके आते हैं खुदा, अपने मसले लेके आपके सामने आते हैं खुदा, क्योंकि एक तो आप हल्ले मुश्किलात हैं खुदा। आपके अलावा एक तो किसी के पास एक तो इन तमाम मुश्किलात का, बीमारियों का एक तो किसी के पास कोई हल नहीं है खुदावन। एक तो हम जितने भी सरनगू हैं खुदावन, इन सबको फर्दन फर्दन एक तो छुए हैं खुदावन। आपका एक तो पाक एकदम अब्बर जो है एकदम जिस तरह एकदम बनी इसराइलियों पे छाया रहता था एकदम, उसी तरह एकदम आज हमारे ऊपर भी एकदम आपका बादल एकदम पाक हजूरी वाला बादल एकदम हमेशा हमेशा के लिए छाया रहे एकदम हमारे खानदानों के ऊपर, हमारे घर के एक एक फर्द के ऊपर एकदम जो आपके नजदीक हैं, जो आपके नजदीक नहीं है खुदा, उन सब के ऊपर एकदम ठहरा रहे खुदा, ताकि सब एकदम आपके आगे एकदम झुके एकदम, क्योंकि आपके कलाम में लिखे हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी है खुदा। और एकदम हर जुबान एकदम जो हमारे घरों में रहती है एकदम आपका इकरार करे, आपके नाम को जलाल दे खुदा। और एकदम देर ना करें एकदम जल्दी एकदम आपके हुजूर एकदम झुके एकदम सब एकदम हम मिलके एकदम आपकी शुक्रगुजारी किया करें, आपकी हमद सना किया करें खुदा, हमें ये शर्फ बख्शे खुदा। एकदम आपके आगे मिन्नत करते हैं एकदम जो भी एकदम इस ग्रुप में एकदम जिन्होंने दरखास्तें रखी हैं एकदम, जिन्होंने दरखास्तें नहीं रखी हैं एकदम, वो सब बीमार हैं खुदा, उनको एकदम छुए एकदम, उनकी बीमारी को दूर करें खुदा, क्योंकि एकदम ये बीमारी एकदम हमारे मसीही लोगों के लिए नहीं है खुदा, ये इब्लीस की तरफ से एकदम हमें परेशान करने के लिए एकदम तरीके है खुदा। आप हम सबको जानते हैं खुदा, जबकि सिस्टम आया कि घुटने में एकदम दर्द है एकदम तकलीफ है खुदा, आप जानते हैं खुदा एकदम, आप इसके पीछे रीजन भी जानते हैं खुदा कि क्या है खुदा, आप उस वजह को दूर करें खुदा, अपनी बंदी को छुए खुदा, उसको शिफा बख्शे खुदा, क्योंकि खुदा आपके कलाम से खुदा शिफा खुदा निकलती है खुदा, आपको छू लेने से खुदा शिफा निकलती है खुदा। हमारा ईमान है कि खुदा ये उसी तरह खुदा आपको छुए खुदा आज, और आप इनको छुए खुदा, जिस तरह एकदम उस 12 बरस की जिसके खून जारी था एकदम उसने आपको छुआ रहता, उसका ईमान था कि मैं उसके पलड़े को ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी एकदम। हमारे अंदर इस तरह का ईमान रखेंगे एकदम, जब हम आपके हुजूर आ ही जाते हैं तो एकदम हमारी सारी एकदम तकलीफें एकदम और सारी हमारी बीमारियां एकदम दुख हमारे एकदम दूर हो जाते हैं खुदा। आज हमारे में इस तरह का ईमान पैदा करें खुदा कि हम आपके पास आए और एकदम हम एकदम हर तरह से एकदम ब्लेस हो जाए खुदा, हमारी हर तरह की परेशानी दूर है एकदम।
तरह की बीमारी दूर है खुदावन। एकदा जब सिस्टर महिंदर के लिए एकदा दुआ करते हैं, एकदा जबकि उनके राह में इब्लीस हर तरह से एकदा रोड़े अटका रहा है खुदा। आपने का कलाम है एकदा कि मैं सहरा में तुम्हारे लिए एक राह बना दूंगा खुदा। आप आज भी एकदा आप वही कुदरत रखते हैं खुदा, इनके लिए एक राह तैयार करें ताकि एकदा इनके सारे मसले हल हो जाए। एकदा जो भी एकदा इनका मुकदमा चल रहा है एकदा वो आपके हुजूर रखते हैं, क्योंकि एकदा आपके कलाम में लिखा है कि हमारा फैसला तेरी तरफ से सादर हो। एकदा आपकी तरफ से हमारा फैसला है खुदा, क्योंकि हम आपकी अदालत में अपने तमाम मुकदमात को लेकर आते हैं खुदा, और आपकी तरफ से ही एकदा हम फैसले के मुंतजर हैं खुदा। Yes, आप Lord. जानते हैं खुदा कि हमारी क्या क्या जरूरत है। एकदा आप अपने बच्चों की दरख्वास्तों को एकदा रद्द नहीं करते एकदा, बल्कि उनके पूरा करके एकदा उनके ईमान में और भी इजाफा करते हैं, ताकि एकदा हम इसी तरह आपके साथ एकदा जुड़े रहें खुदा। सिस्टर अमनदीप के लिए दुआ करते हैं एकदा, जबकि वो खानदान एकदा आपके नजदीक आया है। एकदा आपकी नजर करम है एकदा उस खानदान पे, एकदा खास रहम वाली नजर करें उनके खानदान पे। एकदा जो भी उनके मसले हैं एकदा आप जानते हैं एकदा, अपनी बंदी के वसीला से एकदा आप अपने उसके खानदान में एकदा अपना जलाल जाहिर करें है खुदा, अपने नाम को जलाल दें एकदा, ताकि सब मिल के एकदा वो भी एकदा आपके हुजूर झुके और एकदा आपके नाम को जलाल दें या खुदा। हम सबके साथ होना, सबकी निगहबानी मदद फाज करना एकदा, फर्दन फर्दन एकदा सबको ब्लेस करना हर तरह से एकदा, जो आपकी खिदमत करते हैं एकदा उनकी खिदमत को और ज्यादा बढ़ाना एकदा, और ज्यादा मजबूती अता फरमाना है खुदा। जो एकदा गीतों के जरिए आपकी खिदमत करते हैं एकदा उन्हें भी वफादारी अता फरमाए एकदा, हम सबको एकदा अपनी वफादारी सिखाएं, ताकि एकदा हम पूरे दिल से एकदा खुशी खुशी एकदा वफादारी से एकदा आपके साथ चलते रहे, और आपके हुजूर आने में एकदा हमें किसी भी किस्म की एकदा कोई रुकावट रोक ना पाए एकदा, बल्कि हम हर वक्त एकदा आपके नाम को जलाल दें और आपका शुक्र करते रहें, और एकदा हमारे दिल हमें हमेशा आपकी तरफ बढ़ने को एकदा एकदा इसी तरह खुदावंद हम आपकी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं खुदा। Yes, yes. फ्रेडी मामू के लिए दुआ करते हैं खुदा, ऐसा जबकि वो आपका बंदा एकदा बहुत मुश्किल में तकलीफ में है खुदा, आप उसकी तकलीफ को जानते हैं एकदा, एकदा उसकी तकलीफ को एकदा कम करें है खुदा, जो भी आपकी मर्जी है एकदा उसकी जिंदगी में एकदा पूरी करें एकदा। हर तरह की गुनाह गलतियां कसूर एकदा जिस तरह जो भी एकदा हमसे हुई है एकदा उनसे हुई है एकदा, हम सबको एकदा आप माफ करने वाले हैं Yes, खुदा। आपके yes. लहू से एकदा हम माफी चाहते हैं कि आपका लहू हमारी शिफा के लिए, आपका लहू हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहा है खुदा, ताकि एकदा हम बाप के साथ फिर से वैसे एकदा मिलाप करें एकदा, जैसे एकदा आदम और हवा को जब आपने बनाया एकदा वो वाला मिलाप था एकदा। आज हम आपको बाप कहकर पुकार सकते हैं एकदा, बाप अपने बच्चों की कभी भी कोई दुआ को रद्द नहीं करता एकदा, ये हमारी तमाम इल्तिजाओं को सुने है खुदा एकदा। उनके घर के इर्द गिर्द अपने पाक फरिश्तगान लगाना, और एकदा उनके खानदान पे भी खास अपना रहमत भरा हाथ रखना एकदा, Yes. ताकि एकदा वो आपके खौफ में रहते हुए खुदा अपनी अपनी एकदा जिम्मेदारियों को समझे और एकदा अच्छे तरीके से एकदा पूरा कर सके खुदा। Yes, Lord. आप हमारी तमाम दुआओं को एकदा सुनते हैं एकदा, उन्हें हिम्मत ताकत दें एकदा, ताकि वो अच्छे तरीके से एकदा जो आपने माँ बाप जैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली होती है खुदा, उसको एकदा बेहतर तरीके से एकदा अंजाम दे सकें खुदा। Yes, yes, Lord. और एकदा इस खानदान के लिए दुआ एकदा अपनी खादमा के लिए एकदा दुआ करते हैं एकदा, जो कि हर रोज एकदा हमारे लिए एकदा आपकी आवाज बनकर एकदा यहाँ पे आती है खुदा, और इनकी तमाम मुश्किलात को दूर करें एकदा, इनके तमाम बच्चों की जिंदगियों में एकदा आपकी बरकत को चाहते हैं एकदा, हर तरह की बरकत एकदा, बरकत के दरवाजे एकदा आप इनके लिए खोलें एकदा, फर्दन फर्दन इनके बच्चों पे एकदा अपना खास रहमत भरा हाथ रखना एकदा। मामू की मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं खुदा, मामू को एकदा अपने लिए इसी तरह अपने जलाल के लिए एकदा इस्तेमाल करते रहना एकदा, ये दोनों मियाँ बीवी और एकदा पूरा खानदान मिलके एकदा आपके नाम को जलाल देता जाए एकदा, Yes, आप इनमें बढ़ते जाए और एकदा ये घटते जाए खुदा। हम yes. सब में एकदा एकदा एक यूनिटी पैदा करें कि एकदा जब हम मिलकर यहाँ पे दुआ करते हैं खुदा, तब हमारे हम सब एकदा रूह और जान एकदा एक हो जाए खुदा, हम आपसे Yes, दुआ किया करें खुदा, ताकि हमारे बंधन टूटे हैं खुदा, ताकि yes, हम Lord. इब्लीस की कुव्वतों को एकदा खत्म कर सके खुदा, यीशु के और नाम इब्लीस से, की तमाम हथियारों को हम नकारा बना सके एकदा, यीशु के क्योंकि नाम से. आपके एकदा नाम में एकदा कुदरत है एकदा, आपके नाम में एकदा शिफा है एकदा। इब्लीस आपके नाम से थरथराते और कांपते हैं एकदा, और उस जगह को छोड़ जाते हैं खुदा। आपके Yes, कलाम में yes. लिखा है कि वो आता तो एक रास्ते से लेकिन जाता 7 रास्तों से है खुदा।
इसी तरह खुदा आपका इस कलाम को हम मांगते हैं खुदा, जो जो आपके कलाम में वादे लिखे हैं खुदा, उनको अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं खुदा। अबलीस Yes. के लिए सारे दरवाजों को बंद करते हैं खुदा, अबलीस के सारे हथियारों को आपकी पाक रूह वाली आग से जला देते हैं खुदावन। Yes. और खुदा Okay. आपका रहम भरा हाथ है खुदा, हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही रहे खुदा। और जितने भी खानदानों में अगर किसी तरह के खुदा कोई जो बंधन है खुदा, वो जो खुदा जोड़े हैं खुदा, वो टूट रहे हैं खुदा, या किसी तरह भी कोई खानदान बिखर रहा है खुदा, आप उस खानदान को खुदा खास अपनी रहमत में खुदा छुपा के रखना है खुदा। हर तरह के अबलीसी हमलों से खुदा बचा के रखना है खुदा। खानदानों में सुलह सफाई की दुआ मांगते हैं खुदा। हम सब एक जान होकर खुदा हर रोज खुदा आपके सामने आया करें Yes. खुदावन, जिस तरह के आपके कलाम में लिखा है खुदा। खुदा दाऊद नबी कहता है, मैं खुश हुआ जब मैं अपने खुदावन के घर की तरफ जाता हूँ खुदा। और आपके कलाम में लिखे कि जब कहता है, मैं जब टोलियों के साथ जाता हूँ खुदा, हम भी खुदा अपने खानदानों समेत आपके हुजूर हाजिर हुआ करें खुदा, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है खुदा। इस आखिरी वक्त के लिए खुदा हमें तैयार करें खुदा, Yes. Lord. Yes. ताकि Lord. जब खुदा हवा के बादलों में आए खुदा, हम सब खानदान मिलकर खुदा आपका हवा के बादलों में इस्तकबाल करें खुदा, आपकी दुल्हन की सूरत में खुदा हम आपके साथ जा सकें खुदा, अपने अब्दी मकानों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी मिरास को हासिल करें खुदा। खुदा ये Yes. सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Amen. आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। God bless you too. आमीन। माया, मैंने ऐसे देखा है जैसे आपकी टांग के अंदर एक जैसे लिक्विड जैसा है वो डाला है खुदा ने, तो खुदा ने आपको छुआ है। गॉड ब्लेस यू। और अगर किसी को खुदा ने कुछ दिखाया है या कुछ कहा है तो शेयर कर सकते हैं, आपको खुदा ने टच किया है। ओके जी, फिर गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।